Hello everyone, welcome back again. As you have seen that in our earlier video, we have learned about the communication, the importance of communication, and the objectives of communication. If you haven't seen the earlier video, first of all, go and watch then you will be able to understand the process of communication. So in this video, I'm going to start to make you understand the process of communication. The concept of process of communication is very much important for your examination point of view, as well as the whole syllabus of communication is stick on the process of communication, or we can simply say that the process of communication is the backbone of your syllabus. Moving to the next slide. So, for your understanding, I'm just explaining the simple meaning of communication. So, the simple meaning of communication means a kind of interaction. Means in the process of communication, there will be one sender, and the sender is going to communicate with the receiver. And the receiver, if the receiver is giving feedback to the sender, then the process of communication will be completed. So, the simple meaning of the communication means when we interact our thoughts, our ideas, and any kind of important information to other entity, either the entity is a group or an individual. So, this process of giving or receiving information will be considered as communication. Now let us understand the process of communication. As you can see in your screen that there is a detailed chart has been given of process of communication. So let's start. First of all, you can see that there is a sender, then after the sender encoding, then the message, then the channel, then the receiver, then the decoding. As you can see in the screen, first of all, one is the sender. So as I told you that in the process of communication there will be two entity, one will be the sender and the other one will be the receiver. So what does the sender do? What is the role of the sender? So here the role of the sender is to initiate the message. Means if somebody has to give information to the other person, so the person will be considered as sender. The sender is the initiate, sender do the initiation of imparting the message to the receiver, right? हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि सेंडर वह पर्सन है जो मैसेज की शुरुआत करता है। ठीक है, सेंडर क्या करता है, मैसेज को इनिशिएट करता है। वो अपने दिमाग में कुछ आइडियाज को क्रिएट करता है, या उसके पास कोई इंफॉर्मेशन है जिसको उसको रिसीवर को देनी है, तो वो उसको क्या कर रहा है, क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो सेंडर क्या करता है, इंफॉर्मेशन इनिशिएट करता है। जब सेंडर डिसाइड करता है कि हाँ ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन उसको रिसीवर को देनी है, then sender starts doing encoding. So what is the process of encoding? Do listen it very carefully. Encoding means here the sender choose the best words or ideas, उसको वो क्रिएट करता है। ठीक है, एनकोडिंग करता है, वो अपने दिमाग में फॉर्मेशन करता है कि उसे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। वो सारे सोर्सेस को अपने पास एक्यूमुलेट करता है, इकट्ठा करता है। तो सेंडर क्या कर रहा है, एनकोडिंग कर रहा है। ठीक, एनकोडिंग होने के बाद सेंडर का क्या तैयार हो जा रहा है, मैसेज रेडी हो जा रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर मुझे आपको ये वीडियो के थ्रू मुझे आपको प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन समझानी है, तो यहाँ पर मैं कौन हूँ, मैं सेंडर हूँ और आप सभी लोग क्या हैं, रिसीवर हैं। तो मैंने क्या करा, मैंने एक इनिशिएटिव लिया कि मुझे प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन की इंफॉर्मेशन सामने वाले तक पहुंचानी है। तो मैंने पीपीटीज क्रिएट करी, मैंने अपने आइडियाज को एक्यूमुलेट करा, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग रिसर्च करा कि क्या चीजें हो सकती हैं, कैसे दूसरे तक इस बात को पहुंचाया जा सकता है। तो सेंडर ने क्या करा, एनकोडिंग करा, जिसमें उसने वर्ड्स का, फ्रेजेस का, इमेजेस का, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से मैटर को इकट्ठा करा। सो एनकोडिंग इज द प्रोसेस वेयर सेंडर एक्यूमुलेट द resources of the information to be delivered to the recipient. After doing the encoding, सेंडर का मैसेज क्या हो गया, रेडी हो गया। ठीक है, मैसेज का रेडी होने का मतलब कि मैसेज एक करेक्ट फॉर्म में तैयार हो गया है,
कि मैसेज में उसे क्या लिखना है, उसका फ्रेमेशन ऑफ सेंटेंस क्लियर हो गया है, उसे मैसेज किसको देना है ये भी उसको क्लियर हो गया है। तो मैसेज इज द फाइनल आउटकम created by the sender to be delivered to the recipient, right? उसके बाद आप देखेंगे स्क्रीन पर फिर क्या है, सेंडर है, एनकोडिंग है, मैसेज है, देन चैनल है। तो चैनल भी यहाँ पर कौन चूज करेगा, सेंडर चूज करेगा। हेयर द सेंडर हैज दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेलेक्ट द करेक्ट चैनल टू बी सेंड टू द रिसीवर। तो यहाँ पर चैनल क्या करेगा, सेंडर बिल्कुल एक्यूरेट चूज करेगा जिससे वो रिसीवर के पास इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। जैसे मान लीजिए मैं बता ही रही थी कि मैं यहाँ पे सेंडर हूँ, मैंने इनकोडिंग करा, मैंने पीपीटीज तैयार करी, मेरा मैसेज क्लियर कट तैयार हो गया। और मैंने क्या चैनल चूज करा, मैंने ये मीडियम चूज करा कि मैं वीडियो लेक्चर्स के थ्रू या यूट्यूब के थ्रू आपको इसकी इंफॉर्मेशन दूंगी। तो चैनल हो सकता है मोबाइल फोन हो, कॉल करके बता रहा है वो इंफॉर्मेशन, वो भी चैनल है। तो चैनल आपके ओरल और रिटन दोनों ही हो सकते हैं। ओरल मीडिया का भी यूज हो सकता है और रिटन मीडिया का भी यूज हो सकता है। तो ओरल मीडिया में आपका कॉल करना हो गया, वीडियो कॉल हो गया, आपका बहुत सारे ओरल मीडियाज का यूज हो जाएगा। रिटन में बात करें तो लेटर्स हो गए, आपका मेमोरेंडम हो गया, नोटिस हो गया, सर्कुलर हो गया, तो वो रिटन मीडिया हो जाएगा। तो यहाँ पर सेंडर क्या करेगा, वो चैनल को चूज करेगा। और सेंडर जब चैनल को चूज करेगा तो वो इस बात का भी ध्यान रखेगा कि रिसीवर के पास वो चैनल को एक्सेस करने का मीडियम हो। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने किसी को मेल करा, आपने कोई बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन किसी को मेल के थ्रू बता दी, लेकिन रिसीवर को मेल को एक्सेस करना ही नहीं आता। रिसीवर इज टोटली अनअवेयर अबाउट द चैनल which the sender has chooses to send the information, right? तो वहां पर कम्युनिकेशन की प्रोसेस क्या होगी, अपने आप फेल हो गई, राइट? तो इसीलिए ये सेंडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो करेक्ट मीडिया और करेक्ट चैनल का यूज करके रिसीवर को इंफॉर्मेशन दे। ठीक, अब आप देखेंगे सेंडर ने एनकोडिंग करी, एनकोडिंग के बाद मैसेज तैयार हुआ, मैसेज के बाद उसने चैनल के थ्रू रिसीवर को भेज दिया। अब हेयर द रोल ऑफ रिसीवर गेट स्टार्टेड। What does the receiver will do after getting the message from the sender? Receiver will decode the message. As you can see on the screen that after the receiver there is the decoding process. Decoding process means here the receiver is going to decode the message. Means receiver will try his level best to understand whatever the sender has sent to him. Right? So receiver is decoding the message. तो यहाँ पर रिसीवर क्या कर रहा है, मैसेज को डिकोड कर रहा है, उसको समझने की कोशिश कर रहा है अपने बेस्ट पॉसिबल मैनर से, राइट? अगर रिसीवर ने मैसेज डिकोड कर लिया तो भी बहुत अच्छी बात, नहीं भी कर पाया तो भी वो क्या करेगा, आप स्क्रीन में देखिए डिकोडिंग होने के बाद रिसीवर क्या कर रहा है, फीडबैक दे रहा है किसको, सेंडर को, राइट? receive after the decoding of the message receiver is giving feedback to the sender. अब either the feedback can be positive or negative. अगर उसे समझ में आया तो वो well and good बोलेगा, हाँ समझ में आ गया, फर्दर इंक्वायरी की जरूरत नहीं है। लेकिन रिसीवर को नहीं भी समझ में आया, नहीं समझ में आया तो भी वो वापस सेंडर को बोलेगा कि उसे समझ में नहीं आया, उसे ये दिक्कत है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि डिकोडिंग होने के बाद फीडबैक देना बेहद जरूरी है, किसको, सेंडर को। अगर डिकोडिंग के बाद आपने सेंडर को फीडबैक नहीं दिया, इसका मतलब कम्युनिकेशन की प्रोसेस कंप्लीट ही नहीं हुई, कम्युनिकेशन की प्रोसेस फेल हो गई। ठीक, अब आप साइड में देख रहे होंगे यहाँ पर ऐसा नॉइज लिखा हुआ है और एरोज बनी है, इसका मतलब है कि ये कम्युनिकेशन की प्रोसेस जिस तरीके से स्मूथ दिख रही है वो इतनी ज्यादा स्मूथ हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। हो कब ये प्रोसेस बिल्कुल सही होगी, जब सेंडर और रिसीवर के बीच में अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत ज्यादा हाई होगा, कोई भी मिस इंटरप्शन नहीं आएंगे। जैसे मान लीजिए मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप रिसीवर है, मैं सेंडर हूँ, मेरा वीडियो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं बना है, उसकी साउंड क्वालिटी अच्छा नहीं है, उस पर उसमें जो टेक्स्ट लिखा है वो विजिबल नहीं है, तो वो क्या है, आपको जिस तरीके से मैं इंफॉर्मेशन देना चाह रही हूँ वो आप तक नहीं पहुंचेगी। ठीक है, वो इंटरप्शन है, तो वो क्या है, इट विल एक्ट एज अ बैरियर। तो उसी में से एक ये बैरियर हो सकता है आपका नॉइज का, राइट? राइट।
तो देखिए नॉइज भी एक क्या है, बैरियर है। तो वो डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ बैरियर आ सकते हैं हमारी प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन को इंटरप्ट करने के लिए, राइट। तो वो बैरियर्स हम अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे जब हमारा बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन का टॉपिक आएगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। मैं एक बार आप इसको और बता दे रही हूँ, आप सभी ध्यान से सुन लीजिएगा। देखिए सेंडर इज द person who initiate the message. Sender does encoding first, right? After the encoding means the accumulation of the facts and ideas. After accumulating the facts and ideas by the sender, then the sender create a message, right? A message is like the perfect thing to deliver to the receiver, right? After creating the message, sender will choose the correct channel which is also accessible by the receiver. When the message is received by the receiver, so it is the responsibility of the receiver that he will decode the message in the best possible manner. And after decoding the message, either the message is clear to him or not, he will be going to give the feedback to the sender definitely. If the receiver is not giving the feedback to the sender, then it means that the process of communication get failed. And in the side you are seeing that part of the noise. So noise is act as a barrier. As you can see, the process of communication will look very smooth and clear, but sometimes it does not, because of the occurrence of different kind of barriers, and noise is one of that, right? Hope it is clear to you. See, for your convenience, I have made another slide so you can see or you can just note it down. So here again I am repeating, so means you can define the sender. See, this I have written just to give you an idea so you can write in your exam in a good way. So sender, here it is written, sender is the communicator, right? Sender is the communicator who initiate the conversation. Sender has the responsibility to start the conversation. Initiate matlab shuru karna, start the conversation, right? And has conceptualized the idea. Conceptualize means create the idea that he intends to convey it to others. So it is sender. Next is encoding. So who does encoding? Obviously sender does encoding, process where he uses verbal or non-verbal methods, right? Verbal means oral or written, non-verbal means uske facial expressions, uske gestures, वो हम आगे पढ़ेंगे वर्बल और नॉन वर्बल, टू ट्रांसलेट द इंफॉर्मेशन इनटू अ मैसेज। आफ्टर एनकोडिंग आपको क्या मिलेगा, एक मैसेज तैयार मिलेगा। देखिए वंस द एनकोडिंग इज फिनिश्ड, एनकोडिंग खत्म हो गई, द सेंडर गेट्स द मैसेज दैट ही इंटेंड्स टू कन्वे। तो सेंडर को क्या अपना एक फाइनल आउटपुट मिल जाता है कि उसको ये मैसेज रिसीवर को कन्वे करना है। एंड द मैसेज कैन बी वर्बल और नॉन वर्बल टू, दोनों में से कोई भी हो सकता है। उसके बाद देखिए मैसेज तैयार होने के बाद वो क्या करेगा, कम्युनिकेशन चैनल को चूज करेगा। और कम्युनिकेशन चैनल वो डिपेंड करता है कि सेंडर और रिसीवर का इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कैसा है, राइट। तो करेक्ट कम्युनिकेशन चैनल को सिलेक्ट करने के बाद उसका मैसेज रिसीवर तक पहुंच जाएगा। ठीक, यहाँ से रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू होती है रिसीवर की कि वो अपनी बेस्ट ऑफ नॉलेज के साथ, पूरी कोशिश करने के साथ वो सेंडर के मैसेज को समझने की कोशिश करे। और उसकी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मैसेज को समझने के बाद वो फीडबैक जरूर दे, किसको, सेंडर को। अगर रिसीवर फीडबैक नहीं देता है सेंडर को, इसका मतलब है कि कम्युनिकेशन की प्रोसेस हमारी कंप्लीट नहीं हुई है। सो वी कैन से दैट फीडबैक इज द utmost important element in the process of communication. If the receiver does not deliver the feedback to the sender, then definitely we can say that the process of communication does not get completed, right? For the completion of the process of communication, it is very much essential that receiver try to comprehend the message of the sender, and after comprehending, the person has to give feedback to the sender, right? Hope it is clear to you all. In the next video, we are going to learn the scope and the importance of communication. If you like this video, if you found it worth, please like and subscribe to the channel. Thank you so much.